Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MedNexa. So today our topic is the gross anatomy of the oral cavity. Before starting our topic, first we will talk about the oral cavity. So basically what is the oral cavity? The oral cavity is the space that extends from the lips to the pharynx. Now, the digestive system features three major components that traverses the head and neck. दैट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वो फीचर्स या वो पार्ट्स जो हमारे पास हेड एंड नेक एरिया में आते हैं. सो दैट इंक्लूड्स ओरल कैविटी, फेरेंक्स एंड इसोफेगस. Now, before starting the oral cavity, that is our main topic, first we will study about the lips. So basically, what are the lips? Now, the lips are the two fleshy folds that surround the oral orifice. Now, basically, what is the oral orifice? The oral orifice is the broader anterior opening of the mouth that connects the exterior environment or the surrounding to our oral vestibule, or you can say the oral cavity. So these are the oral orifice. The lips bound the oral fissure. Now what is the oral fissure? There is a slight difference between the oral orifice and the oral fissure. Oral orifice is the broader anterior opening of the mouth that is connecting the basically exterior environment and the oral cavity, while the oral fissure is the actual, the visible slit, space or gap between the upper and the lower lip. That is the oral fissure, the visible gap or slit between the upper and the lower lip, while the oral orifice is the broader anterior opening of the mouth. Okay, so the lips bound the oral fissure. They meet laterally, as you can see कि laterally meet करते हैं at the angles of the mouth. cheeks की साइड पे मीट करते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ माउथ कहते हैं. और हर लिप को एक जो है वो म्यूकस फोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं मीडियली, जिसको हम कहते हैं फ्रेनुलम, जो कि सिर्फ गम के साथ टाई कर रहा होता है. ठीक है, इसको आगे हम विजुअलाइज भी करेंगे डायग्राम से, तो आपने टेंशन नहीं लेनी. नाउ बेसिकली आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे हमारे पास कितनी लिप्स की लेयर्स हैं. तो बेसिकली लिप्स जो आती है ना, वो हमारे पास मेन जो है वो 3 लेयर्स इंक्लूड करते हैं, या हमारे पास अगर एनाटॉमिकल ग्रॉसली देखें तो टू लेयर्स हैं. एक आउटसाइड कवरिंग है जिसको हमने स्किन ने सराउंड किया हुआ, जो कि हमारे पास है जी कैरेटिनाइज्ड है, डेड है हमारे पास, और जबकि इनसाइड ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है. ओके, एंड देन द circulatory and the muscular muscles that originate from the lips patch to the skin and the substance of the lips. और इसके अलावा लिप्स के लेयर्स के अंदर मसल्स भी इंक्लूड होते हैं. मसल्स जैसे कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, जो हमारे पास लिप्स को सराउंड कर रहा होता है, ओरल फिशर को ये सराउंड कर रहा होता है. और इसके अलावा बाकी मसल्स भी जिनका हमारे पास ओरिजिन लिप्स से हो रहा है और आगे जाके वो स्किन पे जाके पैच हो रहे हैं. ठीक है, और इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यूज जो कि हमारे पास लिप्स के सब्सटेंस में आ जाते हैं, और स्मॉल सिलेवरी ग्लैंड्स भी होते हैं. स्मॉल सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ हमारे पास इनर साइड पे होते हैं. जो हमारे पास कैरेटिनाइज्ड आउटर साइड है, स्किन है, तो वो वहाँ पे हमारे पास कोई सिलेवरी ग्लैंड्स नहीं होते. इसी वजह से आपने देखा होगा कि वो ड्राई हो जाती है और हमें उसको एक्सटर्नली जो है वो लुब्रिकेट करना पड़ता है. कोई ना कोई ऊपर से ऐसा कोई सब्सटेंस या कोई ऐसा मटेरियल अप्लाई करके हम खुद उसे लुब्रिकेट करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है जो हमारे पास लिप्स को आउटसाइड खुद ब खुद लुब्रिकेट करे. Okay, then we will talk about the term that is called the philtrum. That is very important term. The philtrum is basically what? The philtrum is the shallow vertical groove seen in the midline on the superficial surface of the upper lip. Now, as you can see on the upper lip, the superficial surface anteriorly, you can see a vertical groove that is starting from the nose and ending up to the upper lip. That is called the basically philtrum. Now, basically here we have discussed 2 new terms. One is the frenulum and then other is the philtrum. इसका डिफरेंस आपको समझ भी आ गया होगा, और इसको हम आगे मजीद विजुअलाइज भी करेंगे डायग्राम से. ठीक है, लेकिन हम उसके पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेबियल फ्रेनुला. Now basically the labia, what is labial frenula? The median folds of mucous membrane that connect the inner surface of the lips to the gums. lower part के साथ कनेक्ट करें. labial frenula या frenulum. frenulum सिंगुलर है, labial frenula एक प्लूरल टर्म है. labial frenula वही मैंने कहा कि मीडियन फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, इनसाइड ऑफ द लिप्स हमारे पास होता है, जो हमारे पास लिप्स को जो है वो टाई कर रहा होता है गम्स के लोअर पार्ट के साथ. आप इसको अपने जो है वो खुद भी विजुअलाइज कर सकते हैं चेक करके. इसके अलावा भी हम इसको जो है यहाँ एक डायग्राम से देख लेंगे, इससे मजीद आपको क्लियर हो जाएगा. Okay, as you can see in this diagram, not in this diagram, sorry. हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं हम. Yes, here you can see. As you can see here now, basically this, as you can see, this is the philtrum of the lip, frenulum of the lip, upper lip, and this is the frenulum of the lower lip. This is basically a slight fold, as you can see, a bulge of the mucous membrane that is tying the lips to the gums, lower part of the gums, so that they remains connected. Okay, so this is basically what you call frenulum. And now to visualize the philtrum, that is the superficial groove on the anterior side of the upper lip,
that is the philtrum. That is starting from our nasal nose and nostrils and ending up to the upper lip. That is basically the philtrum, the vertical groove. Okay, so hope so it is clear now. Now let's move back to our main topic. Now हमने सब कुछ इसका मुकम्मल कर लिया, अब इसकी रह गई लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास स्नेल्स में मेंशन नहीं है, तो आपने ये इंक्लूड कर लेनी है. तो लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है कि जो हमारे पास लिप, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप कंप्लीट नहीं, सिर्फ मीडियन या यू कैन से द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप, दैट इज गोइंग टू ड्रेन इन द सबमेंटल नोड्स, एंड यू कैन सी द सबमेंटल नोड्स आर प्रेजेंट डाउन इन द मिड लाइन in the chin. Here you can say exactly there. And on the slide posteriorly, what are present? The submental nodes are present, and the lymph drainage from the central part of the lower lip is going to drain into the submental nodes. The lymph drainage from the rest of the lower lip, the remaining part of the lips, is going to drain into the submandibular nodes. As you can see, the main from the medial part, the lymph drainage is coming into the submental, and on the sides we have the submandibular lymph nodes. Center we have the submental, and on the sides we have the submandibular lymph nodes, and the rest of the lymph drainage from the rest of the lower lip is going to drain into the submandibular lymph nodes. So here our topic of the lips is completed. Now we are coming towards our main topic, that is what? That is the gross anatomy of the oral cavity. So basically here we are going to start actually the gross anatomy of the oral cavity. So the oral cavity, as you can see, the oral cavity extends from the lips to the pharynx. Now what marks the ending of the oral cavity? I meant to say कि जहाँ हमारे पास oral cavity end होती है और pharynx start होती है, वो point basically क्या है? तो वो point हमारे पास marked होता है by the paired palatoglossal folds. Now what are the palatoglossal folds? अगर आपने मेरे previous lectures दिए होंगे तब आपको अभी तक पता होगा, अच्छे से clear होगा concept कि paired palatoglossal folds क्या है, लेकिन still हम newcomers के लिए बता देते हैं कि paired palatoglossal folds हमारे पास एक्चुअली ये पैलेटोग्लॉसल आर्च होती है, जो कि हमारे पास फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इनसाइड सराउंड के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी ओरल कैविटी को, उसी का फोल्ड होता है. क्या होता है वो हमारे पास ऊपर सॉफ्ट पैलेट है, पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होता है और पोस्टीरियरली जो डोर्सल थर्ड ऑफ द टंग है वहाँ पे जाके ये साइड ऑफ द टंग पे इंसर्ट हो रहा था, और इसके नीचे उसके बिहाइंड हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं पैलेटोग्लॉसिस मसल. तो वहाँ हमारे पास दोनों लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट होता है, तो दोनों लेटरली प्रेजेंट होते हैं. तो ये एक इस तरह हमारे पास एक यू कैन से कर्टेंस बना देते हैं लेटरली, जिससे हमारे पास सेंटर में एक ओपनिंग सी बन जाती है और यू कैन से एक डोरवे बन जाता है, जहां हमारे पास मार्क हो जाता है कि यहाँ ओरल कैविटी एंड हो जाती है और हमारे पास जो है वो जो है ओरल जो फेनिंग्स है वो स्टार्ट हो जाता है. और ये हमारे पास जो एक सेंट्रल ओपनिंग बनाती है पेयर पैलेटोग्लोसल फोल्ड्स लेटरल, दैट आर लेटरल, जो सेंटर में ओपनिंग बनाते हैं इसको हम कहते हैं ओरोफेरेंजियल isthmus. Oropharyngeal isthmus means that is the isthmus means opening that is connecting the oral cavity with the pharynx, which serves as an entrance into the pharynx. Okay, the oral cavity now basically consists of the two main components. One is the vestibule and other is the oral cavity proper. Okay, now basically what is the vestibule? वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक्चुअली वो स्पेस है जब हमारे पास लिप्स एंड करते हैं और हमारे पास लिप्स और टीथ के दरमियान आप देख सकते हैं कि एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं जी वेस्टिब्यूल. So basically it is a slit like space that lies between the lips and the cheeks externally. That means it is bounded by the lips and the cheeks. Externally it is bounded by the lips and the cheeks, and the internally it is bounded by the gums and the teeth, and that slit like space is called the vestibule. और जब हमारे पास जब माउथ ओपन होता है तो वेस्टिब्यूल क्या होती है कि हमारे पास एक्सटीरियर से जो है वो कम्युनिकेट करी होती है via the oral fissure which we have already discussed between the lips, and when the jaws are closed, जब हम अपने jaws को closed कर लेते हैं तो हमारे पास ये oral cavity proper behind, that is the second part of the oral cavity proper, that is actually behind the teeth. So when the jaws are closed it communicates with the oral cavity proper behind the third molar tooth on each side. यानी कि third molar tooth जो हमारे पास होता है उस each side पे, दोनों sides पे, उसके behind उनके पीछे दरमियान में एक रास्ता बन रहा होता है. तो जब हम अपने jaws के close करते हैं तो completely जो gap होता है वो close नहीं हो जाता. तो हमारे पास ये इस तरह फिर जब हमारे पास जो है वो oral cavity proper के साथ vestibule जो है वो communicate करता है. And limitations क्या है इसकी? तो वो ये है कि the vestibule is limited above and below by the reflection of the mucous membrane from the lips and the cheeks onto the gums. तो हमारे पास जो mucous membrane असल में surround
लिप्स को भी जो इंटरनली बाउंड करी है या कवर करी है या लाइन करी है वो एक ही है ना, तो वही म्यूकस मेम्ब्रेन हम मैंने कहा कि वो मीडियली फ्रेनुलम भी लेबियल फ्रेनुलाई भी बनाती है, और वही जो है वो साइडों से भी हमारे पास आके वो गम्स के लोअर पार्ट में उससे आके जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाना होता है। तो वो हमारे पास ये क्या होती है कि ऊपर से और नीचे से लेटरल जो है उसकी बाउंड्रीज बना देते हैं, ऊपर अबव बाउंड्री बनाते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्री बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द लेटरल वॉल तो वो ओरल कैविटी प्रॉपर की तरह इसकी भी लेटरल वॉल चीक से ही करें बाउंड होगी, क्योंकि लिप्स एंटीरियरली है, लेटरली नहीं है। तो वेस्टिब्यूल के भी जो है हमारे पास लेटरली होगा, वो चीक्स ही होंगी हमारे पास, ठीक है। which is formed by the cheek, the lateral wall which is made up by the buccinator muscle. As you can see, the lateral wall has a major muscle that is called the buccinator muscle that is also lined with the mucous membrane. The mucous membrane is tethered to the buccinator muscle by the elastic fibers in the submucosa. Now that is very important point. ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास mucous membrane होती है, जो buccinator muscle को या हमारी cheeks को internally surround करी होती है, तो ये जो हमारे पास mucous membrane होती है ये elastic fibers होते हैं इनके submucosa के अंदर, क्योंकि mucus के पीछे क्या है mucosa, उसके पीछे submucosa and then muscles, muscularis लेयर आएगी। तो mucosa और submucosa के अंदर हमारे पास elastic fibers होते हैं, जो हमारी mucous membrane होती है उसको tethered कहते हैं किसी चीज़ को अंदर धंस देना, तो वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन को टीदर्ड करे होते हैं हमारे पास जो है वो बक्सीनेटर मसल के साथ। इससे क्या होता है कि जब हम च्यू करते हैं या हम अपने जॉज को क्लोज करते हैं, तो अगर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन यूं टीदर्ड या बिल्कुल अटैच नहीं होगी, लूज होगी बाकी पार्ट्स ऑफ द हमारे जीआईटी की तरह, तो क्या है कि उसके जो फोल्ड्स हैं उसके फोल्ड्स बनने के चांसेस हैं, जाहिर सी बात है, एक टेंस एरिया तो नहीं है ना ये, तो एक इसमें लचक है, तो वो फोल्ड्स हमारे जो है वो दांतों के नीचे आ सकते हैं और हम बाइट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इसको हमारे पास जो सब म्यूकोसा के अंदर इलास्टिक फाइबर्स रखे हैं, जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन को बक्सीनेटर के साथ टीदर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ हमारे पास है जी गम्स की बात की हुई है। गम्स को हम जिंजीवा भी कहते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जिंजीवा और गम इज स्ट्रॉन्गली अटैच्ड टू द एल्वियोलर पेरिओस्टियम दैट इज द फाइब्रस कवरिंग ऑफ द एल्वियोलर बोन। नाउ बेसिकली व्हाट इज द एल्वियोलर पेरिओस्टियम? इसके लिए बेसिकली इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टीथ के टॉपिक पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आप बस इतना याद रखें, जो हमारे पास एक सिंगल टूथ होता है ना, तो टूथ अपने सॉकेट के अंदर एक उसका ऊपर वाला पार्ट होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, जो हमारे पास जो है वो एनामल से कवर होता है, वो तो होता है हमारे पास क्राउन, और जो नीचे वाला हमारे पास पार्ट होता है जो हमारे पास सॉकेट में जाके फिल हो रहा होता है, फिट हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एल्वियोलर पार्ट। तो वो एल्वियोलर जो है वो हमारे पास पार्ट होता है, उसको सराउंड करी होती है एल्वियोलर पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम इज द लेयर दैट सराउंड्स द बोन्स। सो बोन्स नहीं, यू कैन से ओस्टियम बोन्स द एल्वियोलर पेरिओस्टियम, क्योंकि ये हार्डेस्ट फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की, इसलिए इसको हम पेरिओस्टियम, इसको जो लेयर सराउंड करिए इसको हम एल्वियोलर पेरिओस्टियम कहेंगे। और ये हमारे पास जो एल्वियोलर पेरिओस्टियम पे भी जो हमारे पास मेम्ब्रेन कवर करी होती है ना, वो जिंजीवा या गम्स की ही मेम्ब्रेन उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्गली अटैच हो रही होती है और कंटिन्यू करी होती है, जो पीछे से हमारे पास लिप से आ रही है, रिफ्लेक्ट होके फिर गम्स पे जा रही है और गम्स से ही जाके एल्वियोलर सॉकेट्स में जाके वहाँ जाके ये एंड करती है। सो नाउ द मसल टोन की अगर हम बात करें तो बक्सीनेटर मसल और जो हमारे पास बाकी मसल्स ऑफ द लिप हैं, बाकी मसल्स ऑफ द लिप में हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है, और वो मसल जो लिप से अपना ओरिजिन ले रहे हैं, दे कीप द वॉल्स ऑफ द वेस्टिब्यूल इन कॉन्टैक्ट विद वन एंड अदर। क्योंकि अगर हमारे पास मसल टोन सही नहीं होगी और इसके अंदर एक टोन या टेंशन नहीं क्रिएट होगी तो चीज़ लटक जाएगी, क्योंकि कंप्लीटली मस्कुलर एरिया, यहाँ हमारे पास बोन्स तो है नहीं सिवाय टीथ के वाले पार्ट के, कोई हार्ड पार्ट तो है नहीं, तो हमारे पास क्या होगा कि लचक ना पैदा हो, यूँ हमारे पास बिल्कुल टिल्ट ना हो जाए। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, बक्सीनेटर मसल और बाकी मसल्स की टोन इनको एक प्रॉपर शेप में रखती है, जिसकी वजह से हमारे पास वेस्टिब्यूल्स की दोनों लेयर आपस में कंटेक्ट रहती हैं जब हम अपने माउथ को क्लोज कर लेते हैं। अब हमारे पास वेस्टिब्यूल को हम एटलिस्ट की एक अच्छी सी डायग्राम से विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो स्पेस नजर आ रही है, बेसिकली दैट इज बाउंडेड बाय द लिप्स एंड द चीक्स एक्सटर्नली, दैट स्लिट लाइक स्पेस ऑन द अबव एंड द लोअर साइड, दैट स्पेस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट यू कैन से इज द वेस्टिब्यूल। एंड now behind the teeth what is you can say is the oral cavity proper, that is the next part. Now बिफोर स्टार्टिंग द ओरल कैविटी प्रॉपर हम कुछ ग्लैंडुलर ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ हमारे पास ओपनिंग्स हो रही होती हैं ग्लैंड्स की। तो सबसे जो मेजर ओपनिंग होती है वो हमारे पास होती है जी डक्ट्स ऑफ द पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन्स ऑन अ स्मॉल पेपिला। स्मॉल पेपिला कहते हैं कि पेपिला कहते हैं एक छोटा सा बल्ज होता है ना म्यूकस मेम्ब्रेन का, जहाँ किसी भी ग्लैंड की जो है वो डक्ट्स ओपन करती हैं इनटू द, और ये ओपन होती है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हम आगे सलाइवरी ग्लैंड्स को डिटेल से पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली हमारे पास 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास वन ऑफ देम आर पेरोटिड ग्लैंड्स, और पेरोटिड ग्लैंड्स की जो हमारे पास ओपनिंग है उनकी डक्ट्स की वो हमारे पास होती है वेस्टिब्यूल वाले एरिया में और ऑपोजिट टू द सेकंड मोलर टूथ। नाउ यू हैव टू रिमेंबर द
space connection between the vestibule and the oral cavity proper is the third molar tooth, and the opening of the parotid duct salivary gland is actually on the second molar tooth. तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना. And on the second molar tooth भी कहा कि on the inner surface of the cheek opposite to the crown. Crown यानी कि मैंने कहा जो हमारे पास नजर आ रहा होता है टूथ का पार्ट, जिसे इनेमल ने कवर किया होता है, वहां पे जाके अपर सेकंड मोलर टूथ पे वहां जाके इसकी ओपनिंग हो रही होती है. ये ओपनिंग्स तो होती हैं हमारे पास, पेरोटिड ग्लैंड की तो ओपनिंग होती है, इसके अलावा भी हमारे पास ओपनिंग्स होती हैं. फर्दर ओपनिंग्स होती हैं लेबियल एंड बकल ग्लैंड्स. ये हमारे पास मेजर ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन ये म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, तो हमारे पास इनकी भी ओपनिंग जो है वो हमारे पास जो है वो सब म्यूकोजा ऑफ द लिप्स में आ रही होती हैं और चीक्स के दरमियान में आ रही होती हैं. तो ये हमारे पास ये भी यानी कि वेस्टिब्यूल में ही जाके ओपन हो रहा होता है. इसके अलावा हमारे पास कुछ मोलर ग्लैंड्स भी होते हैं, 4 और 5 मोलर ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होते हैं, जो भी हमारे पास म्यूकस सेक्रेशंस करते हैं, सारी माइनर सेक्रेशंस होती हैं, इसलिए हमें मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स में हम इनको इंक्लूड नहीं करते. और जो हमारे पास ये मोलर ग्लैंड्स हैं, ये मोल से यू कैन रिमेंबर कि बक्कोफेरेंजियल फेशिया जो इंटरनली सराउंड कर रहा होता है, बक्कोफेरेंजियल फेशिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये इनकी भी ओपनिंग क्या होती है, वेस्टिब्यूल में ही होती है. नाउ हम ओरल कैविटी प्रॉपर पे मूव करने से पहले हम एक एटलस की डायग्राम है, उधर से हम जो है वो ओपनिंग वाला जो पार्ट है मैं उसका आपको अच्छे से विजुअलाइज करा देना चाहती हूँ. ये देखें, ये टंग डिप्रेसर से ना असल में हमारे पास लेटरली उसको साइड किया गया है लिप्स के बाउंड्रीज. तो ये देखें, ये हमारे पास जो एरिया दैट इज एक्चुअली यू कैन से द वेस्टिब्यूल बिटवीन द चीक्स एंड द gums and the teeth. This area is called the vestibule. Now opposite to the second molar tooth, crown of the second molar tooth, you can see a small papilla. This small papilla is the parotid papilla with the opening of the parotid duct. Okay, so here now we will continue with the next main part, that is the oral cavity proper. तो oral cavity proper हमारे पास जो है वो मेन पार्ट या मेजर पार्ट ऑफ द oral cavity बनाती है, और ये हमारे पास ऊपर जो है वो सराउंड होती है, एक रूफ होता है, और नीचे से हमारे पास एक फ्लोर होता है. जो इसकी रूफ होती है वो हमारे पास पैलेट से बनती है, जिसमें एंटीरियरली हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है. और जो इसका फ्लोर बनाती है, तो इसका फ्लोर जो है वो लार्जली फॉर्म्ड होता है बाय द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, क्योंकि जो पीछे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है ना, वो कुछ ना कुछ पार्ट हमारे पास पीछे फेनिक्स में, क्योंकि जो हमारे पास टंग है ना वो सिर्फ ओरल कैविटी में नहीं होती है, आपने कॉन्सेप्ट ये रॉन्ग है. टंग जो है हमारे पास नीचे फेनिक्स तक जा रही होती है, पीछे तक. तो वो हमारे पास जो इसका मेन पार्ट बनाता है ओरल कैविटी में आता है, वो एंटीरियर 2/3 होती है. और इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन की रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो हमारे पास टंग की साइड से नीचे डाउन द टंग भी हमारे पास एक स्पेस है ना, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टंग टू द गम्स ऑफ द मैंडिबल, दैट इज द लोअर जॉ बोन. ओके, ये फ्लोर बना रही है. इसके अलावा हमारे पास एक और मेन पॉइंट यहाँ डिस्कस किया गया, दैट इज द फ्रेनुलम ऑफ द टंग. नाउ व्हाट इज द फ्रेनुलम ऑफ द टंग? फ्रेनुलम ऑफ द लिप्स तो हमने पढ़ लिया कि जो मीडियन फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन था, दैट इज टाइंग द इनर सरफेस ऑफ द लिप्स टू द lower part of the gums. Now the frenulum of the tongue is actually also a fold of the mucous membrane that connects the under surface of the tongue to the floor of the mouth. तो जब हम अपनी जो टंग है उसकी वेंट्रल सरफेस को देखते हैं, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसको हम बेसिकली डोर्सल सरफेस कहते हैं, जो नीचे वाली सरफेस है टंग की उसको हम वेंट्रल सरफेस. हम जब इसको उठा के देखते हैं ना, तो नीचे आपको एक मीडियन फोल्ड नजर आएगा ऊपर से नीचे, जो टंग को टाई कर रहा होगा हमारे पास फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के साथ. तो उस पार्ट को या उस फोल्ड को हम कहते हैं फ्रेनुलम ऑफ द टंग. नाउ व्हाट इज प्लाइका फेम्ब्रियाटा? That is a fringed fold formed by the mucous membrane lateral to the frenulum. अब फ्रेनुलम के ही इर्द गिर्द हमारे पास एक ओल्ड फोल्ड्स होते हैं, स्मॉल बल्जिज होते हैं हमारे पास फ्लोर में. ये टंग पे नहीं होते, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्लोर जो है वो नीचे ओरल कैविटी के वहाँ होते हैं, स्मॉल फ्रिंज्ड फोल्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लाइका फेम्ब्रियाटा. ठीक है, वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के फोल्ड होते हैं, और फ्रेनुलम के ईच साइड पे लिटरली प्रेजेंट होता है. मीडियली फ्रेनुलम ऑफ द टंग होता है, लिटरली प्लाइका फेम्ब्रियाटा होता है. और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेजर ग्लैंड है उसकी डक्ट्स की ओपनिंग हो रही होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दैट इज द मिक्स्ड स्लाइवरी ग्लैंड, जिसकी मिक्स्ड सेक्रेशंस होती है म्यूकस प्लस सीरस. उसकी भी हमारे पास क्या होती है, उसकी भी डक्ट ओपन होती है ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, लेकिन किससे, सेंटर में मीडियली फ्रेनुलम, उसके दोनों लेटरली साइड पे प्लाइका फेम्ब्रियाटा, और उसके भी लेटरली क्या होगा कि हमारे पास एक जो है वो स्मॉल पेपिला होगा फ्रेनुलम साइड पे ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग, जहाँ हमारे पास जो है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वो ओपन हो रही होंगी. ठीक है, और इसके अलावा सबलिंगुअल फोल्ड होता है, एक फोल्ड होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड से हमारे पास ये थर्ड मेजर स्लाइवरी ग्लैंड है विच प्रोजेक्ट्स अप इनटू द माउथ. ये हमारे पास माउथ में अप, ये सबलिंगुअल फोल्ड जो है ये अप होता है, अप प्रोजेक्ट होता है ये हमारे पास, ये भी फ्लोर में है नीचे वाले पार्ट में, लेकिन इसकी थोड़ा बल्ज ऊपर की तरफ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, जिससे एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाता है, और वहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड की हमारे पास न्यूमरस डक्ट्स जो है वो ओपन करती है उस फोल्ड की समिट पे.
दोनों की पैपिला पे ओपन कर रही है, जबकि इसकी जो है वो एक फोल्ड पे ओपन करती है, सबलिंगुअल ग्लैंड की सबलिंगुअल फोल्ड पे ओपन करती है, बाकी सब मैंडिबुलर डक्ट की सब मैंडिबुलर पैपिला पे, जो कि हमारे पास फ्रेनुलम ऑफ द टंग के लेटरली होगा, इधर साइड बोथ साइड्स पे होगा। और जो हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड है उसकी भी 2 ही ओपनिंग्स होंगी, जो कि हमारे पास पेरोटिड पैपिला पे ओपन होंगी, ठीक है। Now we are going to talk about the sensory innervation. That is the basically very important part कि इसको sensory innervation कौन देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा sensory आप देखें ना, कोई चीज़ important है, taste एक बहुत बड़ा sensory function है हमारे पास टंग का, और you can say the oral of the oral cavity, तो इसकी sensory innervation बहुत important है। तो basically जो roof की sensory innervation है that is by the greater palatine and the nasopalatine nerves from the maxillary division of the trigeminal nerve. Trigeminal nerve basically एक cranial nerve है, उसकी maxillary division से 2 branches निकलती है, एक is the greater palatine nerve and other is the nasopalatine nerve। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें हमारे पास सिर्फ ग्रेटर पैलेटाइन, जिन्होंने पैलेट वाला लेक्चर लिया हुआ है तो ग्रेटर पैलेटाइन और नेसोपैलेटाइन की बात करें, लेकिन हम लेसर पैलेटाइन नर्व की बात क्यों नहीं कह रहे, जबकि सॉफ्ट पैलेट को तो लेसर पैलेटाइन नर्व सप्लाई करती है। तो बेसिकली जो हमारे पास ओरल कैविटी प्रॉपर में बेसिकली जो पार्ट आ रहा होता है एंटीरियर, वो आ ही पार्ट हार्ड पैलेट का रहा होता है, तो इसलिए उसी की सेंसरी इन्वर्वेशन होगी। और इसको मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक पिक्चर बड़ी अच्छी सी बनाई हुई है, उससे समझ लेते हैं हम। सो बेसिकली एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, तो ये हमारे पास एक फोरामेन होता है, एंटीरियरली हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये ओरल कैविटी प्रॉपर का हमारे पास जो है वो रूफ नजर आ रही है, दैट इज फॉर्म बाय द हार्ड पैलेट। ओके, सो हियर यू कैन सी द nasopalatin nerve that is entering through the incisive foramen, and the incisive foramen and basically the nasopalatin nerve is a branch of which nerve is actually a branch of the maxillary division or branch of the trigeminal nerve। और ये greater palatine nerve है जो कि हमारे पास greater palatine foramen से laterally एंटर करी होती है, और ये laterally सप्लाई करी होती है जी रूफ को सेंसरी इनर्वेशन ओरल कैविटी प्रॉपर की। Now coming back, the floor of the oral cavity proper, इसकी अगर हम oral cavity की sensory innervation की बात करें तो that is by the lingual nerve। जो अब हमारे पास 2 किस्म की sensation होती है, एक general sensation होती है, general sensation is of the that can be of the heat, that can be of the pressure, that can be of the touch, okay, that is the general sensation and that is carried by the lingual nerve। Now lingual nerve is actually a branch of also trigeminal nerve, लेकिन trigeminal nerve की कौन सी ब्रांच की, mandibular division की। इसको याद रखने का बड़ा ही एक आसान और कंसेप्चुअल तरीका है, बजाय इसके कि आप क्रैमिंग करें, उससे अच्छा ये कि आप कॉन्सेप्चुअली याद करें। और वो तरीका ये कि देखो रूफ है, रूफ में हमारे पास ऊपर कौन सी बोन होती है, मैक्सिला बोन, तो उसमें जो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की ही कौन सी डिवीजन होगी, मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांचेस होंगी। और नीचे फ्लोर है तो फ्लोर पे हमारे पास कौन सी होती है, मैंडिबुलर बोन, तो वहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व की ही कौन सी डिवीजन होगी, मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच होगी, दैट इज द लिंगुअल नर्व दैट इज गोइंग टू कैरी द जनरल सेंसेशन। और जो हमारे पास टेस्ट सेंसेशन है दैट इज थ्रू द कॉर्डा टेम्पेनाई। कोडा टेम्पेनाई नर्व इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये आपने याद रखना कि यहाँ जो ब्रांच है वो फेशियल नर्व की ब्रांच है एंड दैट इज द कोडा टेम्पेनाई। इस कोडा टेम्पेनाई और फेशियल नर्व की ब्रांच इसको हम मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम टंग वाले टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ हम टेस्ट फाइबर्स और उनकी सेंसरी इनर्वेशन को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास चीक्स को हमारे पास बक्कल नर्व सप्लाई करी होती है, लाइक द बक्सीनेटर जो मसल को होती है बंकल नर्व, दैट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व से ही मेन हमारे पास सेंसरी डिवीजन जो है वो इनर्वेशन आई है, सिवाय फेशियल नर्व जो कि हमारे पास टेस्ट फाइबर्स के लिए है कॉर्डा टेम्पेनाई के जरिए। Note, the buccal branch of the facial nerve innervates the buccinator muscle, okay, whereas the buccal nerve supplies the sensory fibers to the cheeks. Now, the buccal branch of the facial nerve, यहाँ बात असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट क्यों हाईलाइट किया हुआ है, असल में यहाँ एक बात वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास अभी हमने चीक्स की बात की कि चीक्स की सेंसरी इनर्वेशन क्या है, वो ट्राइजेमिनल नर्व की जो है वो ब्रांच है, लेकिन वो ब्रांच क्या है, वो खुद एक नर्व है, बक्कल नर्व है, वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करिए, जो चीक्स को है वो सेंसरी इनर्वेशन प्रोवाइड करिए। लेकिन जो बक्सीनेटर मसल जो कि यानी कि जो चीक ही बेसिकली बक्सीनेटर मसल, ये उसका मेजर बल्क जो है, तो उसकी जो मोटर इनर्वेशन है ना वो बक्कल ब्रांच है। वो बक्कल ब्रांच किससे आ रही है, वो बक्कल ब्रांच ही है, लेकिन वो फेशियल नर्व की ब्रांच है। तो सेंसरी इनर्वेशन ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही है और जो मोटर इनर्वेशन है वो फेशियल नर्व से आ रही है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास चीक्स वाला भी सारा जो है वो एरिया कवर हो जाता है। थोड़ा जूम इसको हम कम करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। नाउ अब हमने सिग्निफिकेंस पढ़नी है ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन की, कि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ओरल कैविटी हमारे पास इज एन एरिया दैट रिक्वायर्स रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन, ये एक जनरल बात की हुई है। द क्लिनिशियन मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल द स्ट्रक्चर्स विजिबल ऑन द mouth and be familiar with the normal variations in the color of the mucous membrane covering the underlying structure। इस ये बात कुछ छोड़ दें, ये रैंडम बात है जिसने की हुई है। The sensory nerve supply and the lymph drainage of the cavity should be known।
ये हमारे पास पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये इसकी मैंने बताया कि सेंसरी नर्व सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज हमने याद की, सब मेंटल और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ये पॉइंट आपको याद रखने वाले हैं। ये मैं रीडिंग इसलिए करवाती हूँ क्योंकि हम बेसिकली यूएच स्पेसिफिक हम करिकुलम को डिस्कस करें तो ये स्नेल्स की लाइन है, और मैं चाहती हूँ कि आपको इतना लंबा लेक्चर बनाया है तो उसमें कम से कम मैक्सिमम रिटेन हो जाए, वरना रीडिंग करवाने का कोई और मकसद नहीं है। हम डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे जो है वो वीडियोस में या लेक्चर्स में यही एक लैकिंग पॉइंट होता है कि हमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड या स्पेसिफिक मटेरियल नहीं मिलता कि एग्जैक्टली जो हमें हमारे करिकुलम का ही बताए। तो मेरा मकसद ये है, प्राइमरी पॉइंट और प्राइमरी हिट ये है कि आपको जो सिलेबस है और जो लाइन्स है, और अब तो वैसे भी MCQ सिस्टम है तो लाइन्स कम से कम क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आर दैट इज The close relation of the lingual nerve to the lower third molar tooth should be remembered. That is, हमने बताया कि जो lingual nerve की हमारे पास sensory इनर्वेशन दे रही होती है, तो ये हमारे पास जो पास कर रही होती है ना, वो लोअर थर्ड टूथ से जो है वो गुजरती है, उसके बिल्कुल करीब से जो है ना इसका कोर्स होता है लिंगुअल नर्व का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द सब मैंडिबुलर, जो हमारे पास लिंगुअल नर्व, सॉरी मैं नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने लगी, लिंगुअल नर्व को लोअर टूथ थर्ड मोलर टूथ है, तो ऐसे होता है कि अगर स्वेलिंग हो जाए तो इससे क्या हो सकता है कि लिंगुअल नर्व जो है हमारे पास उसका कोर्स है, तो वो हमारे पास उससे क्या हो सकती है, उसमें इरिटेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेंसरी जो है वो सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो सकती है, और जाहिर सी बात है जो उसका सेंसरी फंक्शन है फिर वो भी इंटरप्ट हो जाएगा। और लिंगुअल नर्व के सेंसरी फंक्शन हमने पढ़ा है क्या है कि वो जनरल सेंसेशंस लेके जाती है। इसके अलावा सब मैंडिबुलर डक्ट का जो क्लोज रिलेशन है विद द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये हमारे पास भी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ा कि सब मैंडिबुलर डक्ट क्या है, सब मैंडिबुलर पेपिला पे ओपन करिए, जो कि फ्रेनुलम ऑफ द टंग की लिटरली दोनों साइड में ओपनिंग हो रही है, पेपिला एक स्मॉल बल्ज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन क्रिएट हो रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि अक्सर बाजुकात ऐसा होता है कि हमारे पास एक कैलकुलस या स्टोन्स बन जाते हैं, हमारे पास लिम्फ नोड्स है, लिम्फ ड्रेनेज है, तो वहाँ स्टोन्स बनने का खदशा है। अब लिम्फ ड्रेनेज बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे है, हमने कहा कि ये डाउन द चिन वाली साइड पे है, ये हम यहाँ से विजुलाइज भी कर लेते हैं। यहाँ देखा ना, यहाँ चेक्स में यहाँ क्या है, ये हमारे पास सबमैंडिबुलर डक्ट आ रही है, जिससे आगे फिर हमारे पास सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है और यहाँ ड्रेनेज हो रही है। तो पीछे तो यहाँ हमारे पास सबमैंडिबुलर डक्ट है, ये हमारे पास फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, और नीचे ही हमारे पास क्या है, कोई कैलकुलस बन गया। तो यहाँ स्टोन्स बनने की जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। अब इसकी डक्ट जो ओपन हो रही है ना, तो वो बिल्कुल इसके जो है वो बिल्कुल करीब ओपन हो रही है, दैट इज ऑन द कि सब जो सबमैंडिबुलर ड्रेनेज हो रही है, ये सबमैंडिबुलर कैलकुलस बन रहा है, स्टोन्स बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ है। तो उससे क्या हो सकता है कि ये जो इसकी ड्रेनेज हो रही है या सलाइवा सेक्रीशन होती है, और ये मिक्स्ड सेक्रीशन जो है हमारे पास होती है, तो वो इंटरप्ट हो सकती है कैलकुलस की वजह से। वहाँ एक जो है वो बल्ज बन सकता है, जिससे पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा। जब पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा और हमारे पास सेक्रीशंस आगे नहीं जा पाएंगे, तो सेक्रीशंस पीछे की तरफ, पीछे ही हमारे पास स्टोर होने लग जाएंगी सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर ही पीछे। तो उससे क्या हो सकता है कि वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आगे मजीद हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन की तरफ जाके ले सकता है। तो फिलहाल बस यही है कि इन्होंने पॉइंट बताया कि जो हमारे पास ये सबमैंडिबुलर कैलकुलस बनता है, इसको आप फ्लोर के जरिए जो है पेल्पेट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे से बिल्कुल म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं कवर किया हुआ है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी को, तो वहाँ आप इसको पेल्पेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास पीरियोडिक स्वेलिंग और जो लीड कर सकता है पीरियोडिक स्वेलिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। क्यों स्वेलिंग कॉज करेगा? क्योंकि ये आगे से पाथवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, सेक्रीशंस आगे नहीं जा पाएंगी, वो पीछे ही स्टोर होना शुरू हो जाएंगी और इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। और ये हमारे पास लिंगुअल नर्व का पाथवे दिखाया हुआ है कि लोअर थर्ड मोलर टूथ से कैसे इसका क्रॉस रिलेशन है, और ये हमारे पास कैसे ऐसे जनरल सेंसेशंस कैरी करेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। बेसिकली अब इसको एक अच्छी सी हम मजीद जो है वो जनरल व्यू मजीद हम डायग्राम से ले लेते हैं, ताकि हम दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज हो जाए हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो स्पेस थी स्लिटर स्पेस की वेस्टिब्यूल था, और इसके अलावा लिप्स जो है वो फ्रेनुलम ऑफ द टंग के जरिए हमारे पास बाइंड होते हैं, और इसके अलावा यहाँ हमारे पास जो टंग है उसकी हमारे पास वेंट्रल सरफेस दिखाई गई है, और वेंट्रल सरफेस के बाद ये आप देख सकते हैं सेंट्रल में जो फोल्ड है जो कि टंग की वेंट्रल सरफेस को टाई कर रहा है फ्लोर के साथ, दैट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम ऑफ द टंग। और इसके बिल्कुल साइड पे हमारे पास क्या होगी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स की सबलिंगुअल फ्लोर्स विद द ओपनिंग ऑफ द सबलिंगुअल डक्ट्स यहाँ साइड पे दिखाए गए हैं, और जब यहाँ ओपनिंग होगी फ्रेनुलम के लिटरली, वो हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के सबमैंडिबुलर पेपिला के जरिए ओपनिंग होगी। ठीक है, सबलिंगुअल कैनक्यूले सबलिंगुअल कैनुंकल है विद ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट। इस पॉइंट को आप छोड़ दें, ये कोई और बात उसने डिस्कस की है, ये हमारी सेल्स में ये पॉइंट मेंशन नहीं है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने सारी डिस्कस कर ली है।
ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट दिखाया गया है, ऊपर इसके ये पोस्टीरियरली ज़्यादा व्यू दिखाया गया टंग डिप्रेशन के जरिए, इसके आगे एंटीरियरली हार्ड पैलेट होता है। यहाँ बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट था कि फिल्ट्रम ऑफ द लिप, ये सुपरफिशियल सरफेस पे अपर लिप की एक वर्टिकल ग्रूव होता है, ठीक है, ये इसको हम फिल्ट्रम ऑफ द लिप कहते हैं। ये यूविला जो कि सॉफ्ट पैलेट की कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, जो हमारे पास आगे जाके नेजोफरेंजियल जो है वो इस्थमस इसको क्लोज करती है, ताकि हमारे पास जो रीजर्जिटेशन ऑफ द फूड ना हो सके, वो दिखाया गया। बस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। और जो ये नोट्स हैं ये मैंने कम्प्लीटली जो है वो स्नेल से ही जनरेट किए हैं, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं ऐड खुद कर देती हूँ। जैसे इसमें जो ग्लैंड्स वाली ओपनिंग, डक्ट्स की ओपनिंग की बात थी, वो स्नेल्स में मेंशन नहीं है, पैरोटिड डक्ट्स और बक्कल ग्लैंड्स की और मोलर ग्लैंड्स की, तो वो मैंने इंक्लूड करनी है। अगर आपको इन नोट्स का जो है वो लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ लाजमी, और डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स का जो है वो लिंक डाउनलोड कर लें, वहाँ से नोट्स जो है वो जनरेट कर लें। अगर स्टिल आप डाउनलोड नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते, वैसे तो एक्सेस हो जाएगा, तो आप पर्सनली नीचे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।